Now, as the NDA continues to swell, the opposition India bloc continues to shrink. From Kerala to Kashmir, the bitter differences continue to come to the fore. Now, NC leader and former Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah has said that he will not ally with Mehbooba Mufti's PDP in Jammu and Kashmir. As the seat-sharing talks continue, the India bloc allies, the National Conference, has refused to accommodate PDP. While the NC will contest on 3 Kashmir-based Lok Sabha seats, the Congress will contest in Udhampur, Jammu and Ladakh seats. The NC has refused to surrender Anantnag Rajouri for the PDP. Omar has also called Mufti's PDP the party number 3 in the valley. He has said that the number 1 and the number 2 party cannot give a seat to the number 3 party. तो मैंने पहले ही आपसे कहा ना, जो तीसरे नंबर पे आए उनको सीट मांगने का कहां से हक बनता है, और वो तीसरे नंबर पे तब आए जबकि पूरी जमात उनके साथ थी। आज जिन्होंने उनको तीसरे नंबर पे लाया, उनमें से कितने लोग आज पीडीपी में हैं? अगर मुझे इंडिया अलायंस में जाने से पहले यह कहा गया होता कि इंडिया अलायंस में हमें अपने आप को कमजोर करना है इंडिया अलायंस के किसी दूसरे मेंबर के लिए, मैं शायद कभी इंडिया अलायंस में जाता ही नहीं। Now, reacting to the statement, PDP chief Mehbooba Mufti has said that she is not bothered about what Omar Abdullah is saying. In fact, she has blamed him for the fallout of the Gupkar alliance. वो तो आपने उमर साहब ने खुद कहा कि अलायंस में है ही नहीं, तो वो तो मैंने तो कुछ नहीं, मैं तो चाहती थी कि हम पीएचडी बिल्कुल बरकरार रहे, आगे चलती रहे, पर उन्होंने तो खुद कहा, उन्होंने जो सीटों का कहा वो तो कहा, पर उन्होंने कहा कि ये तो अलायंस में है ही नहीं, पीडीपी सिचुएशन की वजह से अलायंस से बाहर हो गई है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि पीएचडी को तोड़ने का काम, पीएचडी को खत्म करने का काम, लोगों की आखिरी उम्मीद को खत्म करने का काम कहां से हुआ? हमने तो नहीं किया, हम तो नहीं चाहते हैं। As the battle for 2024 heats up, Aam Aadmi Party convener and Delhi's Chief Minister Arvind Kejriwal, along with his Punjab counterpart Bhagwant Mann, has launched the party's Lok Sabha poll campaign. The party has come up with a slogan, Sansad mein bhi Kejriwal, to Delhi hogi aur khushhal. Kickstarting this campaign, the AAP convener hit out at the Bharatiya Janata Party and the Delhi LG for stalling every project that is launched by the Aam Aadmi Party, and urged people to strengthen him by sending all 7 opposition candidates to the parliament. आज मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि अपने बेटे को मजबूत करो। इसी तरह से जैसे आपने विधानसभा में मेरे हाथ मजबूत किए, अब संसद में मेरे हाथ मजबूत कर दो। संसद में मेरे को 7 एमपी दे दो, जो इंडिया गठबंधन के हैं 7 एमपी दे दो। ये 7 एमपी मेरे 7 बड़े बड़े हाथ बन के काम करेंगे। अगली बार एलजी काम रोकेगा, ये 7 काम करा के लाएंगे। अगली बार अगर केंद्र सरकार काम रोकेगी, ये 7 काम रोक के काम करवा के लाएंगे। अगली बार संसद के अंदर आपके हक मारे जाएंगे, ये 7 एमपी संसद में उठ के आपकी आवाज बनेंगे। आप 7 बीजेपी के एमपी जिता देते हो, आपको क्या मिलता है? केवल और केवल आपके काम रोकने का काम करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। Remember, the Aam Aadmi Party is set to contest the Lok Sabha elections with the India bloc ally Congress. The seat-sharing talks between the two parties are underway, but sources suggest that AAP will contest on 4 seats while the Congress on 3. 9 साल केजरीवाल, लूट भ्रष्टाचार दिल्ली बेहाल, ये है नारा अरविंद केजरीवाल का। पिछले 9-10 सालों में दिल्ली को लूटने का काम किया है, भ्रष्टाचार किया है, और एक डिपार्टमेंट ने हर विभाग में भ्रष्टाचार किया है। ये जो उन्होंने आज कैंपेन लॉन्च किया है, ये कैंपेन लॉन्च नहीं है, ये फेस सेविंग है। जनता के बीच में जाने का मादा नहीं रखते हैं। उप मुख्यमंत्री इनके जेल में है, सांसद इनके जेल में है, एक मंत्री बेल पर है। किस मुंह से जनता के बीच में जाते हैं? While the difference over seat sharing in the India bloc has been widely discussed, the NDA is also facing challenges of its own, be it in Maharashtra or in Bihar. Now, in Bihar, the BJP seems keen to repeat the 2019 seat formula in its entirety, be it for the JDU or the LJP. Sources claim that the BJP has now offered 6 seats in all to the LJP factions. While 4 seats have been offered to the Chirag Paswan faction, 2 seats have been offered to his uncle Pashupati Paras.
Remember, this comes after the India Alliance offered Lok Jan Shakti Party Ram Vilas chairperson Chirag Paswan 8 Lok Sabha seats in the state and 2 in Uttar Pradesh. After a public split with his uncle following his father Ram Vilas Paswan's death, Chirag had insisted that his faction is the rightful claimant of the Hajipur seat represented by his father in the past, currently being represented by Pashupati Paras. Now, LJP State President Raju Tiwari said that the seat is theirs and that shall not change. राजू जी, सीट शेयरिंग को लेकर जो एनडीए में बिहार में चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक नहीं दिख रहा है क्योंकि डिमांड सब पार्टियों की अलग अलग है। आप लोग किस तरह से इसको ले रहे हैं? नहीं, आप पता नहीं कहाँ से कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। हमको लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है और पहले से परंपरागत बंटवारा होते आ रहा है। 14 से हम लोग एनडीए घटक दल के साथ ही हैं, तो कहाँ इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति है? तो जनता ने मोहर अपना दे दिया चिराग पासवान को। जनता चिराग पासवान जी को तो मैं गर्व से कहता हूं कि अब कोई वो दलित के नेता नहीं है। आज उनको सब जाति में, सब मजहब के लोग चिराग पासवान में अपना भविष्य देख रहे हैं। चिराग पासवान 2020 में अगर सत्ता का सुख भोगना होता तो 2020 में वो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री होते। वो अलग चुनाव लड़ने का फैसला उन्होंने अलग किसके लिए किया? बिहार के युवाओं के लिए किया जो बेरोजगार हैं। अभी 6 सीट जो पिछली बार आप लोगों की थी, वही 6 सीट आप लोगों की डिमांड है? मतलब देखिए, डिमांड करने की आवश्यकता नहीं है। वो परंपरा वो तो चली आ रही है ना, तो चली आ रही है। तो 6+1 हमारा जो चला रहा है, 7 सीट हम 14 में लड़े, 6+1 पे हम लड़े आपको 19 में। तो फिर बार बार डिमांड थोड़ी ना होता है, ये तो चलता आ रहा है ना। Meanwhile, the RJD has made an open offer to Chirag Paswan and said that the BJP has made every effort to extinguish the lamp, and now the decision to enlighten the lamp depends on Chirag Paswan. तो मुद्दे की बात, काम की बात, पढ़ाई कमाई दवाई सिंचाई की बात, नौजवानों किसानों की बात करनी है, देश हित में सोचना है, लोकतंत्र संविधान बचाना है, तो वो साथ आएंगे। जो नहीं आएंगे वो पछताएंगे। अब ये फैसला तो श्री चिराग पासवान जी को लेना है कि उनके राजनीतिक दल के चिराग को बुझाने का प्रयास तो बीजेपी ने किया था। ये सही समय है, उनको फैसला लेना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। आप लोगों ने अपना दरवाजा खोला है, खोल रखा है। कि हमारे लिए तो श्री आदरणीय लालू प्रसाद जी ने क्या कहा कि ये राष्ट्रीय जनता दल जो गरीबों, गुरुओं, वंचितों, शोषितों सबकी लड़ाई लड़ता है। यहाँ दरवाजा बंद हम नहीं करते। जैसे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कहा था कि नीतीश जी आपके लिए सदैव के लिए दरवाजा बंद कर दिया गया, फिर दरवाजा खोल दिया गया। यहाँ सब दिन दरवाजा खुला रहता है, लेकिन मुद्दे की बात, काम की बात होगी। There's a Maha war happening in the NDA camp over seats as the Bharatiya Janata Party seeks 32+ seats in the upcoming Lok Sabha elections. Seems like BJP allies in Maharashtra are not ready to settle for fewer seats. Now, it's been learnt that Shiv Sena is expected to get 10 to 12 seats and NCP about 4 to 6. However, the allies have cautioned the Saffron Party, saying that it may cause resentment and leaders from the Shinde and the Junior Pawar camp may switch sides. As the seat tussle continues, sources suggest that Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde and his deputy will once again meet BJP's chief strategist and Home Minister Amit Shah to iron out the differences. Even as the opposition continues to take a dig at BJP's first list that did not have Nitin Gadkari's name in it, Devendra Fadnavis has now cleared the air, saying that his will be the first name in BJP's second list. Nitin Gadkari, remember, has been representing the Nagpur Lok Sabha seat from 2014. माननीय गडकरी साहेब हे आमचे मोठे नेते आहेत। महाराष्ट्राचा जेव्हा नंबर येईल ते महाराष्ट्रातनं नागपूरमधनं लढताल। ज्यावेळेस पहिली यादी झाली त्यावेळी महाराष्ट्रात आमची जी महायुती आहे त्याचा निर्णय झालेला नसल्यामुळे महाराष्ट्राच्या जागांवर त्या ठिकाणी आम्ही चर्चा केली नाही। महायुतीचा निर्णय करून महाराष्ट्राच्या जागांवर जेव्हा चर्चा होईल त्यावेळेस सगळ्यात पहिल्यांदा नितीनजींचं नाव येईल। त्यामुळे मला असं वाटतं की हे जे काही या ठिकाणी स्वतःला मोठं दाखवण्याचा प्रयत्न उद्धवजी जे करतायत त्यांचं हसं होत आहे।
आप कितनी मांग कर रहे हैं और कितनी अपेक्षा रखते हैं? एक हो गई मांग और आप अपेक्षित कितनी सीटें रख रहे हैं? नहीं, अब मांग तो हमने 22 सीटों की है, लेकिन हमें लगता है कि 18 से 20 के बीच में हमारे को सीटें मिलेगी, क्योंकि वो जरूरी 13 सांसद हमारे हैं जो स्टैंडिंग है, और 22 लड़े थे तो उसमें से दो तीन 4 कम हो गए, तो 18 के करीबन सीटें मिलना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। देखा जाए जिस तरीके से कल्याण की अगर बात करें, थाना की, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और वहीं अमरावती, और खास करके रामदास कदम का जो स्टेटमेंट आया है और आनंद राव अडसुल जी का भी स्टेटमेंट आया है, इसको लेकर के कहीं वाद विवाद होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कल जिस तरीके से फडणवीस साहब ने कहा कि हमारे पास 115 है, उसके बावजूद हमने सम्मान के रूप पर एकनाथ शिंदे जी को चीफ मिनिस्टर बनाया, तो ये बयानबाजी को कैसे देखते हैं? नहीं, बयानबाजी नहीं। देखो, रामदास कदम रहो या अडसुल साहब रहो, ये बड़े नेता है। अब ये नेताओं ने अपना विचार वहां रखा है। देवेंद्र फडणवीस साहब ने भी कहा 105 लोग हमारे हैं, तो भी हमने सम्मान रखा है। ये सब अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। किसने क्या किया, किसकी वजह से ये हो रहा है, ये दोनों पार्टी जानती है। इसलिए हमें अनबन नहीं है, लेकिन हमारी भूमिका स्पष्ट है कि अपन एक परिवार बन के चले। एक्टर विजय